Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the class. And we are starting a new session today on Sunday, which is 11th of May. And welcome to Amina, Aisha, Shinwari, Danial, and Fatma, Marwa, and Samiullah. So, ladies and gentlemen, we talked about yesterday the medium. Remember? Because our topic is about the physical layer, and the physical layer, one of the important concept is about the medium. And the medium, we talked about that we can have a guided medium and we can have an unguided medium. So we talked about yesterday about in the copper, which is a guided medium, and the guided medium copper, we talked about the twisted pair, and we talked about the coaxial cable. We also talked about in the TP, we talked about the UTP, unshielded twisted pair, and shielded twisted pair. Then we want to talk about the fiber optic cable, and we have seen that this cable in yesterday's class, we saw how the propagation of light occurs in an optical fiber. Number one. Number two, we talked about that the fiber optic can be a single mode fiber and it can be a multi-mode fiber. In short, you can understand that a single mode fiber has a single path through the optical fiber. And the diameter of the core is mostly 5 to 9 micrometers. ठीक है हारिस? तो हमने कल पढ़ा कि अगर हमारा जो फाइबर है उसका डायमीटर फाइबर में कोर का, हमने कल पढ़ा है कि स्ट्रक्चर वाइज कि इट हैज ए कोर एंड इट हैज ए क्लैडिंग. Which means the blue one is the cladding and the orange one is the core. So actually the ray of light flows through the core, and the diameter of the core, if it is around 5 to 9 micron, it is a single mode fiber, and through this very light तो दोनों ही हैं, लेकिन small diameter fiber has, if it has a one single path through the fiber, we call it a single mode fiber, and that communication is called single mode communication, and that is done for the long haul. Like yesterday we talked about the submarine cables. So here you are using the single mode fiber. Why? Because it is more efficient for the long haul, because the losses are very low. Especially the dispersion of light is very low. That's the reason without any amplification, the signal can, without any regeneration, the signal can travel far apart. That is a big advantage. But definitely for this, you must need the laser. We said the source will be laser, which is expensive, as you know. So the laser is used for communication in a single mode fiber for long distance communication. While if you want to communicate within the LAN or within the buildings, like for example, we have a building which is in these very near to us, but still there's some distance between, and that is the CMS office, and the other office is, for example, our lab. So we want to connect to an optical fiber cable. So in this case, the cheap optical fiber, which is cheap as compared, not as compared to the copper, cheap as compared to the single mode fiber, it is the multi-mode fiber. And to understand about the multi-mode fiber, first of all, the core, as we said yesterday, the core will be from 50 to 62.5 micron. It has, as compared to 5 to 9 micron, it is 50 to 62.5 micron. So you can see, as compared to this, it is around 5 to 6 times wider in diameter. And multiple paths
are available for the light to travel. Multiple paths are available. That is one of the path, for example. There is another path, for example. That is another path, for example. So multiple signals, multiple paths, multiple modes are traveling simultaneously to the fiber. And for this, because it has a wider diameter, we can insert multiple modes there. And for this, we use instead of using the lasers, we use the LEDs, light emitting diode, as the source. But in this case, Haris, what is happening? That is less distance, maybe half a kilometer, because definitely the two buildings mostly are from Peshawar University. We want to bring something into University of Peshawar, from University of Peshawar to UT. So definitely in this case, again, if fiber is desired, we will definitely go for the multi-mode fiber. सिंगल मोड में आपने बोला कि लेजर यूज होता है ना, लेजर की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, Sure. फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ कम होगा, Sure. और फिर इसका डिस्टेंस भी कहीं कम होगा। ओके 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 ओके। तो आपने ये कहा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि लेजर क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें कोई शक नहीं, कल हमने यही बात की है कि क्योंकि इसका डायमीटर कम है तो आपको अपना वेवलेंथ कम रखना होता है, और वेवलेंथ कम रखोगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी, बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो कैपेसिटी ज्यादा मिलेगी। तो ये तो हो गई बड़ी अच्छी सी बात ही। दूसरे एंड पे आपका जो ख्याल है कि शायद फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से डिस्टेंस कम हो जाएगा, वो उस केस में कम होता है जबकि आपकी दीवारें हो, हिंड्रेंसेस हो। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे मिसाल के तौर पे, इफ आई टेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रिमोट, तो दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी, दैट द रीजन इट कैन नॉट ट्रैवल आउटसाइड द वॉल। बट लेकिन यहाँ तो कोई दीवार नहीं है, यहाँ तो उसको कंप्लीट एक पाथ मिला हुआ है, तो इट कैन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे क्योंकि एक ही मोड है, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिस्पर्शन और इसमें के लॉसेस नहीं होते, या बहुत मिनिमम होते हैं। इसकी वजह से इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, मे बी 100 किलोमीटर विदाउट एनी रिपीटर और एम्पलीफायर। क्लियर? टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है कि मतलब ये वेवलेंथ कम भी होगी फिर ज्यादा करोगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है कि अगर वेवलेंथ कम भी है। नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमने कल पढ़ा, वो हमने ये सीखने की कोशिश की, मिसाल के तौर पे अगर मैं उसको उसी तरह खोल लूं तो मेरा टाइम बच जाएगा। ये वन नोट है, और जी हमने यहाँ पे यहीं पे पढ़ा था, बिल्कुल अच्छा है कि हमें मिल गया। तो हमने कहा कि जनाब अगर मिसाल के तौर पे एक रे ऑफ लाइट आए और हमने इसको जूम किया कि ये प्लेन मिरर है, तो इट विल reverse in the same direction, in the same medium, sorry, and we will call it the reflection of light। लेकिन अगर एक रे ऑफ लाइट आए और ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजर के दूसरे मीडियम में चला जाए, तो देन वी कॉल इट इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन वी कॉल इट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? अब अगर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो अगर ये इंसिडेंट रे है आई, तो ये एक्सपेक्टेड हमें ये है कि ये इस डॉटेड लाइन के तौर पे चली जाएगी। लेकिन इन रियलिटी इधर अगर ये नॉर्मल है, तो या तो ये इस नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, या ये नॉर्मल से भाग जाएगी। इसकी एग्जांपल मैंने कल ये दी थी कि मिसाल के तौर पे अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये दूर भागेगी या ये नजदीक भागेगी। तो मैंने कल इसकी एग्जांपल ये दी थी कि अगर मिसाल के तौर पे आप अपने किसी भतीजे को, भांजे को, यानी छोटे से बच्चे को लेके किसी पार्क में चले जाएं, लेट करें आर्मी स्टेडियम ले गए, वहां पे ज्यूम करें कि वहां पे फ्लावर्स हैं, वहां पे पीकॉक्स हैं, कुछ खूबसूरत परिंदे हैं, और भी इसके अलावा झूले हैं। तो बच्चा जू ही आपके उसमें इंटर होगा, वो आपसे अपना हाथ छुड़ा के और उन चीजों की तरफ भाग जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये मीडियम, आप उसके लिए मीडियम डेंस हैं, आप अगर उसके लिए मीडियम डेंस हैं और वो जगह उसके लिए मीडियम लाइट है, तो वो अपने नॉर्मल से दूर भाग जाए। फिर मैंने एग्जांपल ये दी कि अगर वहीं पे उसको एक, और बच्चा कुत्ते से बहुत डरता है,
और उसको एक कुत्ता वहां नजर आ जाए जो उसकी तरफ भाग रहा है, तो वो क्या करेगा? सबने कहा कि जी वो बच्चा जो है मेरी तरफ भाग के आ जाएगा कि मुझे बचाओ। तो यहां पर भी ये है कि अगर वो मीडियम डेंस हुआ, अगर वो मीडियम, इसलिए मैंने इसको इस ऑरेंज कलर से क्या रिप्रेजेंट किया कि अगर ये मीडियम डेंस हो गया तो वो इस मीडियम इस नॉर्मल यानी टुवर्ड्स यू भाग आएगा। अब मुझे कौन सा फीचर पसंद है? मुझे ये पसंद है कि अगर लाइट ट्रेवल करे डेंस मीडियम से और जाए लेस डेंस मीडियम की तरफ, यानी कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए। ओके, अब हमने कहा कि अगर जिस एंगल से हम गिरा रहे हैं, अगर हम इस एंगल को इंक्रीज करें तो क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, यानी 1 से 2 पे चली जाएगी, 2 से बिल्कुल बाउंड्री पे भी जा सकती है। द एंगल एट विच इट बिकम्स पैरेलल टू द बाउंड्री, वी कॉल दिस एंगल एज अ क्रिटिकल एंगल, वी कॉल दिस एंगल एज अ critical angle. Now what happens? If we increase above the critical angle a little bit, the ray of light will travel back into the same medium. It will look like the reflection of light, although it is not a reflection of light, but it looks like this. So this phenomenon is called total internal reflection. तो हमने फिर यही कॉन्सेप्ट यहां पे ले आए ऑप्टिकल फाइबर में। तो हमने कल कहा कि ऑप्टिकल फाइबर में एक आप एज्यूम करेंगे ऑरेंज पाइप है और उसके अंदर एक ब्लू पाइप है, लेकिन ये पाइप एक ही मटेरियल के हैं, इनमें कोई गैप, और ये पाइप्स भी नहीं है, डू रिमेंबर ये पाइप भी नहीं है, सॉलिड है, लेकिन समझने के लिए सिर्फ हमने ये जूम किया कि ये पाइप है। अब अगर हम इस मीडियम को यानी कोर के मीडियम को डेंस ले लें और क्लैडिंग के मीडियम को लेस डेंस यानी रेयर ले लें, तो क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट आके इस जगह पे स्ट्राइक करेगी। अब ये ऐसा इसको लगेगा कि ये दो डिफरेंट मीडियम्स हैं क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट है। तो ये रे ऑफ लाइट अगर हमने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा भी गिराई है तो इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम एंड देन इट विल स्ट्राइक हियर, it will bounce back again here, and in this way this ray of light will never go theoretically into the cladding, और अगर cladding में नहीं जा सकी तो फिर बाहर कैसे जाएगी? इसका मतलब once the ray of light is trapped within the core, it will always remain the core and will reach to the destination. And in this way the loss, because light is nothing for us, light is important for us from the perspective that it is carrying information, it is carrying information. So we can say that the loss of information is not occurring here, or there is a minimum, very minimum loss of information there. तो इस अमल को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन जो रे ऑफ लाइट हाई फ्रीक्वेंसी की, ये तो बड़ा ही इजी है कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है एक बात, तो लाजमी तौर पे इसका मतलब है कि मोर बैंडविड्थ, अगर मोर बैंडविड्थ है तो इसका मतलब है कि उसमें ज्यादा बिट्स पर यूनिट टाइम ले जाने की यानी कैपेसिटी उसकी ज्यादा। तो इससे तो ये बड़ी क्लियर हो गया कि अगर सिंगल मोड है हैविंग ए हाई फ्रीक्वेंसी हाई बैंडविड्थ कैरिंग मोर कैपेसिटी विच इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जैसे कल हमने, अगर शायद आप कल क्लास में नहीं थे और आपको भी वो वीडियो भी नहीं मिली, हमने एज्यूम किया कि एक एंड जो है हमारा वो कराची में है और दूसरा एंड जो है वो मे बी यूएस में है, एंड दैट इज सबमरीन केबल। आज के लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा सबमरीन केबल। तो सबमरीन केबल का लेंथ बहुत ज्यादा है, तो फॉर दिस द सिंगल मोड फाइबर इज मोर अप्रोप्रिएट। अब आपने कहा कि जनाब जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो वो कम डिस्टेंस कवर करती है, तो वो इस वजह से करती है कि उसको उसमें से ऑब्स्टिकल से गुजरने की सलाहियत नहीं होती। ये नहीं कि उसमें जाने की ताकत नहीं है। इस तरह तो अगर आप देखें तो फ्रॉम योर बेसिक फिजिक्स हमने पढ़ा था कि एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, एंड एफ याद होगा फोटॉन के परस्पेक्टिव से हमने ये पढ़ा हुआ है। तो हाई द फ्रीक्वेंसी मोर द एनर्जी इन द सिग्नल, तो इट हैज इट द पावर टू ट्रेवल फार फार अवे, नो प्रॉब्लम, बट दैट इज द थिंग क्योंकि इसका वेवलेंथ छोटा होता है फ्रीक्वेंसी हाई के होने से, तो ये जो ऑब्स्टिकल में से गुजरने की ताकत इसमें ये वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। लेकिन हमारा ऑप्टिकल फाइबर तो हमने पहले कहा कि ये प्योर सिलिका है, यही तो हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है। तो अगर हिंड्रेंस नहीं है तो फिर तो एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब है दूर तक भी जाएगा और ज्यादा कैपेसिटी भी लेकर जाएगा। नाउ मेक सेंस जी? डजंट मेक सेंस? ओके जरा
तो ये तो हमने कल पढ़ लिया। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि ये कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो कल मैंने आपको ये भी क्लियर करने की कोशिश की। आगाज मैंने, क्योंकि मैंने, अगर आपको दोबारा दिखा दूं तो इट विल बी इवन मोर अप्रोप्रिएट। सबमरीन केबल का मैप दिखाता हूं, कल भी दिखाया था। और स्टार्ट में करता, और इससे आपको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया के, क्योंकि वन वन फोर्थ जो है दैट इज, और वन वन थर्ड और वन फोर्थ इज दी ड्राई लैंड, अदर तो सारा पानी है। तो आप ये देख लें कि इफ आई स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, हियर इज पाकिस्तान। सो इवन डू रिमेंबर, बाज़ अगर मुझ पे स्टूडेंट पूछते भी हैं कि ये डिफरेंट कलर्स का क्या मतलब है। डिफरेंट कलर्स का मतलब है डिफरेंट केबल्स। इसका मतलब है कि हम दुनिया के साथ एक केबल के साथ कनेक्ट, कोई भी मुल्क एक केबल के साथ कनेक्ट नहीं करता अपने आप को। जैसे अभी आपको नजर आ रहा है कि इस पे लिखा है CME-V4। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो देखिए ये CME-V5। इसको अगर मैं थोड़ा सा और आगे ले जाऊं तो पीस पीस केबल। थोड़ा सा और ले जाऊं तो दैट इज द CME-V5, दैट इज ट्रांसवर्ड। एक केबल नहीं, मल्टीपल केबल से आपने अपने आप को आपने कनेक्ट किया हुआ है। और सिर्फ ये हमारी, हम फिर भी कहूंगा मैं तो थोड़े से बेवकूफ हैं कि हमने सिर्फ कराची पे ये किया है। व्हाई नॉट गवादर, व्हाई नॉट सम अदर प्लेस। जैसे मिसाल के तौर पे इवन आप अगर ईरान को देखें तो ईरान इस जगह पे भी कनेक्टेड है। अगर आप ये देखें तो एक और जगह है, हमारा तो सारा कराची है ना, देख ले, दैट इज प्रॉब्ली गनीवी, दैट इज अनदर प्लेस देन अल्फा। यहां पे देख लें तो अल, दैट इज कुवैत। दैट, तो कहने का मकसद कि दुनिया एक, क्योंकि हमें पता है कि योर होल सबसे ज्यादा ताकत आपकी जो है ना वो आपकी इकोनॉमी होती है, एजुकेशन एंड इकोनॉमी। दीज आर द टू फैक्टर्स विच मेक्स यू सुपर पावर। प्रॉब्ली मिलिट्री कांट मेक यू द सुपर पावर। अगर ऐसा होता तो जापान सुपर पावर कभी भी, और स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क ना होता। तो दैट इज द थिंग विच मेक्स यू द सुपर पावर इज योर एजुकेशन। एंड एजुकेशन भी रटमार वाली एजुकेशन नहीं, उसको हम एजुकेशन नहीं कहते। तो वन इज द एजुकेशन एंड नंबर टू इज द इकोनॉमी। और एजुकेशन अच्छी करो, इकोनॉमी खुद ही अच्छी हो जाती है। तो इसका मतलब जस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट इन वन थिंग एंड दैट इज द एजुकेशन। बाकी सारी चीजें आपकी खुद ब खुद नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको इनको पता है कि जी एजुकेशन और इकोनॉमी बगैर इंटरनेट के, बगैर इसके नहीं चल सकती। जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं दे हैव शोन दैट। तो इसलिए द दुनिया, द कंप्लीट वर्ल्ड, यू कैन सी हियर दैट इफ आई स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान देन आई वेंट टू द ईरान। ईरान के साथ आपने यहाँ पे कतर, कुवैत, मुख्तलिफ कंट्री देखिए, कुवैत, यहाँ पे आप देख रहे हैं इराक, यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरिया, लेबनान, एंड देन साइप्रस। तो यू कैन सी हियर दैट आपका पूरी जो दुनिया है, ये यहाँ पे आपको, अगर आप आगे और चले जाएं तो यू कैन सी हियर दी ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, पोर्टुगल, आयरलैंड। तो एंड फ्रॉम देन यू इफ यू मूव टू द अटलांटिक ओशन and you are in the Canada and US, you are in the Canada and US, and how you can see कितनी जगहों पे इन जालिमों ने अपने आप को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड। तो इससे आपको पता चलता है कि किस तरह दुनिया इस फाइबर के साथ कनेक्टेड है। देखिए ये जापान आपको नजर आ रहा है, ये कोरिया नजर आ रहा है। तो जिन ममालिक में ज्यादा तरक्की है उनकी ज्यादा कनेक्टिविटी है। तो यहां पे मैंने ये समझाने की कल कोशिश की थी कि लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव द सबमरीन केबल्स, which means we are laying the high speed, high capacity links to the sea, to the oceans. फिर हमने कहा कि जनाब अगेन सबमरीन और लॉन्ग हॉल में सिर्फ फर्क किया, हम इज्यूम करते हैं कि लॉन्ग हॉल का हम इज्यूम करते हैं कि ये ग्राउंड पे है, buried in the ground. तो मतलब वन एंड इज मे बी इन पेशावर, द अदर एंड माइट बी इन लाहौर, ठीक है। देन दी अदर वन, इसको मैंने एक्सप्लेन ये किया था कि फाइबर जो है, कुछ टाइम पहले हमने कॉपर को रिप्लेस करने की कोशिश की विद द फाइबर, और हमने सबसे पहले गए फाइबर टू द कर्ब।
FTTC। कर्व का मतलब ये है कि वेरी एडजेसेंट टू योर रेजिडेंस, वेरी नियर टू योर बिजनेस। जैसे मिसाल के तौर पे PTCL ये करे कि इरनम हॉस्पिटल के पास फाइबर ले आए, और फिर उसके आगे क्या कहे, उसके आगे क्या कहे कि जनाब पिशावर यूनिवर्सिटी भी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी, खैबर मेडिकल कॉलेज भी, एग्रीकल्चर भी, वो यहां से आगे कॉपर के जरिए अपने अपने डिपार्टमेंट तक ले जाएं, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी तक ले जाएं। तो इसको वी विल कॉल एट द फाइबर टू द कर्व। फिर हमने कहा कि कर्व भी दूर है, व्हाई नॉट इट शुड बी फाइबर टू द बिल्डिंग, कि जी हर बिल्डिंग के बाहर तक आप फाइबर पहुंचा दें और फिर अंदर वो आप कॉपर के जरिए लेकर जाएं। कॉपर इसलिए फिर वहां जरूरी है कि हमारे डिवाइसेस जो हैं, यू अंडरस्टैंड, दैट कैन रन ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड द इक्विपमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ऑप्टिकल इक्विपमेंट नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। तो जब होगा तो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, बट प्रेजेंटली वी डोंट हैव। तो इसलिए हम बिल्डिंग तक ले आते हैं फाइबर। जैसे मिसाल के बाहर, हमारी बिल्डिंग के बाहर फाइबर पहुंचा दिया जाए और कहा जाए आगे आप इसको ऑप्टिकल से कन्वर्ट करो इलेक्ट्रिकल में, और कॉपर वायर के जरिए हर डिपार्टमेंट, हर रूम, हर लैब तक पहुंचा लो। दैट इज सेकंड वन। फिर हमने कहा नहीं, ये भी नहीं, हमें तो चाहिए फाइबर टू द होम, घर के अंदर तक हमें फाइबर पहुंचा के दो। लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ योर लैब हियर, द फाइबर इज अप टू द स्विच। तो हम इस स्विच तक, अपने यहाँ इस रूम तक, इस लैब तक, इस एकेडमी तक हमने फाइबर पहुंचाया, और वहां पे हमने उसको ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में लेकर आए और फिर आगे अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टी को, सबको प्रोवाइड कर दिया। तो दिस इज द फाइबर टू दी होम, and that is the same even if you look at your passive optical network at your home, which you call as a PON or GPON. They both again are giving the like a fiber to the home. आपके घर के वो जो राउटर लगा हुआ है, ऑप्टिकल रूटर, वहां तक उन्होंने फाइबर लाए हैं और वहां पे उन्होंने उसको ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन दी। अगेन मैंने आपको बताया द रीजन कि और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे डिवाइसेस ऑप्टिकल पे नहीं चल सकते, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू। क्या ऐसा पॉसिबल है जो वर्किंग वारंटी के अंदर होती है वो हम जो लैपटॉप हैं, जो कंप्यूटर के अंदर बिल्डिंग करते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन आपने ये किया कि अगर वही मॉड्यूल जो कि ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है वो हम अपने डिवाइस में तक पहुंचा दें, इज इट पॉसिबल? वेरी राइटली इट इज पॉसिबल, लेकिन दीज डिवाइसेस आर स्टिल लिटिल एक्सपेंसिव। तो मिसाल के तौर पे इस स्विच पे एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मेरे ख्याल 15,000 या 16,000 रुपए का ये डिवाइस था, जो कि हमने एक इस साइड पे लगाया और एक उस साइड पे लगाया। तो यानी तकरीबन कोई अराउंड 30,000 प्लस में हमें ये चीज पड़ गई। तो अगर हम ये 30,000 थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा, अभी आप अगले स्लाइड पे जब आप जाएंगे तो यूजर का मोर इंक्लिनेशन दैट इज टुवर्ड द वायरलेस, क्योंकि ही वांट मोबिलिटी, और ऑप्टिकल में कोई मोबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी। नंबर टू, आप अगर ऐसे यूजर हैं कि थोड़ा मूव करते हैं तो फाइबर एक डेलिकेट आइटम है। जैसे कल किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था यहाँ पे कि आप अगर कॉपर की वायर होती है तो उसको, तो आप अगर कॉपर की वायर है मिसाल के तौर पे ये, तो इसको तो अगर ये लंबी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, सिंपल इसको यूं पीसेस बनाते हैं और उसके ऊपर को लटका देते हो, कहते हो जी बस सही हो गया है। लेकिन ये काम आप कहो इसके साथ, आप ये काम इसके साथ, यानी एंड दिस इज ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के साथ नहीं कर सकते। you have to keep it on a certain in a circular form, in a circumference you will be using। आप इसको यूं नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हम अपने जहां कोई अगर सर्वर है तो इसकी चीज है तो यस, चलो स्पीड से इफेक्ट होगा अगर हम इन अ सेकंड। थोड़ा पे स्पीड अच्छी होगी। वहां पे आप 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग यूज कर रहे हो उसी को, और आप एक डिवाइस पे ला रहे हो, तो डेफिनेटली ये तो बिल्कुल इस तरह हो गया कि उस स्विच को मैं कहूं कि इस पे और कोई नहीं लगेगा, सिर्फ इसको एक कनेक्शन इसको आफाक को दे दो इससे। ओके जी, आगे चलते हैं। तो हमने कहा फाइबर टू द होम, उसके बाद हमने कहा जी इंटरप्राइज नेटवर्क्स में। आपको पता है इंटरप्राइज नेटवर्क मतलब बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग। तो मिसाल के तौर पे इसको दो तरह से हम ले सकते हैं। वन इज के आपका एक ऑफिस इस्लामाबाद में है, दूसरा कराची में है, और यू आर एन आईटी
कंपनी, तो कम से कम जब आप आईटी समझते हैं, आप आईटी कंपनी अपने आप को कहते हैं, तो यू नीड वेरी हाई कनेक्टिविटी बिटवीन द टू ऑफिसेस. So for this, you can use the optical fiber. That is one way. Other, you may be a data center, running a data center. It may be a private data center, it may be a public data center, it may be a hybrid data center, it may be a customized data center. So in this case, again, gentlemen, you may even within this organization, within this unit, you want that the communication should be done in the optical domain. So again, you can use there the optical. Got the answer? So these are the places, these are the usage where you can use your very well known medium, which is optical fiber today. क्यों आरे साहब आप बड़े खामोश खामोश हैं? नींद में बस ना, अब तो 9:15 हो गए, अब तो नींद छोड़ देंगे. ओके, व्हाट अबाउट दी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट, वो भी नींद में है या नींद में जाए कर रहे हैं अभी भी? जी, आमिना, आयशा, शिनवारी, दानियाल, फातिमा, खतीजा, माहीन, हारिस, समीउल्लाह, तलहा. शाबाश. Is there any question? I just repeated what I did yesterday. तो समीउल्लाह कह रहे हैं नो क्वेश्चन, दानियाल भी कहते हैं क्लियर है, तो दैट्स गुड. तो जनाब, अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरह. अगले टॉपिक तो नहीं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं. और ये जो अभी आपने कहा कि जनाब फिजिकल में ज्यादा मजा आता है, आई एग्री. क्योंकि आज आप, जो कि आपने अभी तक शायद आपने कल भी मैंने आपको RJ5, RJ45 कनेक्टर, RJ11 कनेक्टर और ब्रिटिश नेवल कनेक्टर, टी टाइप कनेक्टर, ये चीजें दिखाई. ठीक है ना? मिसाल के तौर पे कल आपने देखा कि कल आपने ये कनेक्टर्स देखे. तो मिसाल के तौर पे इफ आई गो हियर, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई शो यू अगेन, और अभी मुझे मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब देंगे, मुझे नहीं, मैं बताऊंगा, आप मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट बताओगे कि आपको जो नजर आ रहा है ये किस किस्म का कनेक्टर है और इसका क्या नाम है. शाबाश. स्क्रीन में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा तो अपनी सिस्टर के साथ करीब हो जाओ अगर इस पे मसला है. ठीक है, तो चलें. तो जनाब, ये हमें समीउल्लाह ने बताया कि जो कनेक्टर हमें आपको नजर आ रहा है, दैट इज RJ45. RJ45. ओके. इसके मुकाबले में अगर मैं ये कनेक्टर दिखाऊं, तो ये कौन सा कनेक्टर और किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है? फिजा बोलो. RJ11 किस पर्पज के लिए यूज होता है? टेलीफोनी के लिए. कि आप अपना, जब अपने रोजेट पे, टेलीफोन रोजेट पे एक तरफ ये लगा देते हो और दूसरे एंड पे आप अपनी टेलीफोन पे दूसरा एंड लगा देते हो, तो यूं आपकी आपकी फोन जो है वो टेलीकॉम नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है. इज इट क्लियर? आजकल के जो टेलीफोन है वो भी RJ11 का भी काम करते हैं. श्योर श्योर. अभी हम इसको, इस पे छोटी सी बात कर लेते हैं ताकि ये बात हमारी क्लियर हो जाए. तो हमारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि जनाब, क्या आज भी, तो ये मैं आपके सामने आपकी टेलीफोन ले आया, तो अगर मुझे 1 मिनट के लिए ये केबल आप दे दें, तो ये देखिए, ये आके यहाँ पे लग जाएगा. ये देखें, दूसरा एंड जो है वो हम कहाँ लगा देंगे? यहाँ पे रोजेट में. तो इसका मतलब है कि अगर दूसरा एंड मैं इस बॉक्स में लगा दूं, ये रोजेट आ गया, तो दूसरा एंड इस केबल का मैंने, ये देख लें, इसका मैंने यहां लगा दिया, तो यूं, और ये पीछे, इसका मतलब ये कहां पे लग गया? टेलीकॉम कंपनी के साथ.
किसके साथ लग गया? टेलीकॉम कंपनी के साथ। तो बस इसका मतलब है कि आप इसको यहां रखें और हेलो करें। ठीक है। तो राउटर में आगे जाने का कोड नहीं होता अपना किसमें? राउटर में। ओके, इसमें भी बात, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने बात की फिजा अनुराग के अंदर सीखेंगे एक्सेल रूटर जो एक, बल्कि आप खुद यहाँ से उठा लो, साइड पे पड़ा हुआ है, तो सर इशारा कर देगा आपको। तो आपके सवाल का जवाब कि क्या हमारे राउटर में भी, तो अब इससे मैं कंफ्यूज होता हूं। कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं? ताकि मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप बात कर रहे हैं डीएसएल मॉडेम की, विच इज ए राउटर एज वेल, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें, आप देख रहे हो कि इसमें RJ45 का पोर्ट है। ये देख लो RJ45 का, ये देख लें इसमें ये RJ45 का पोर्ट ये है। शाबाश। इसमें ये RJ45 का पोर्ट आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप वायरलेस रूटर की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट इज नॉट कनेक्टेड टू दी टेलीकॉम कंपनी। तो इसमें RJ45 की बजाय RJ11 की बजाय RJ45 का ये कनेक्टिविटी है। ये देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास अभी केबल थी जिसके साथ मैं खेल रहा था, ये केबल। तो इसको, इसलिए हम कहते हैं दानियाल को कि यहाँ पे आओ, ताकि जो आपका मिशन है कि मैं प्रैक्टिकली चीजें देखूं, तो मैं खाली इससे ज्यादा प्रैक्टिकल, देखो इसमें अब कौन सी केबल लगाई है मैंने? आरजे RJ45। तो एक्सेस रूटर में RJ45 लगता है, जो आपको दुनिया से कनेक्ट करता है। और डीएसएल मॉडेम में आप ये देख रहे हो कि यू हैव दी विच केबल? RJ11। दिस केबल इज, ये जो आपको नजर आ रही है, दिस कनेक्टेड टू द टेलीकॉम कंपनी। अब जवाब मिल गया। तो इसलिए हम दानियाल को और समीउल्लाह को कहते हैं कि घर में मत बैठो, यहां पे आओ, यहां पे चीजें फिजिकली देख सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है, मैं पहले उसका जवाब दे दूं। although कि हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन वालों को भी उतना ही बेहतर सब कुछ मिले। तो एक मैसेज क्या है, हम इसको देखना चाहेंगे। मैसेज है कि सर ये दोबारा बताएं, दोबारा बता देते हैं। यस सर, क्लियर है। ओके। तो ये मुझे क्लियर नहीं हुआ कि आपने क्या चीज क्लियर करवाना चाह रहे हैं। मैंने अभी सिर्फ ये बताया कि आपने दो कनेक्टर्स के बारे में आपको बताया, एक RJ45 जो कि नेटवर्किंग में इस्तेमाल होता है, और एक RJ11 जिसके साथ इस मशल खेल रही है। ठीक है। दूसरी मशल में भी खेलना है कि नहीं? काफी है। ओके, वापस आएंगे। तो अब फिर क्वेश्चन आपने आगे ये किया कि ये हमारे जो डीएसएल मॉडेम है मिसाल, तो क्या उसमें भी RJ11 लगता है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल लगता है, और फिजिकली दिखाया। फिर आप, मैंने बताया कि अगर आपने पीछे आपसे नेटवर्क आ रहा है, यानी कि डेटा नेटवर्क आ रहा है, आपको किसी टेलीकॉम फोन के साथ नहीं कनेक्ट हो रहे, तो फिर वहां पे आपके RJ45 का कनेक्टिविटी होती है, जो कि एक्ट करता है एज ए गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे। क्लियर? इसी तरह मैंने कल आपको एक और कनेक्टर भी बताया, एक और कनेक्टर भी बताया। अच्छा, माइंड तो नहीं करती हो? हम्म? वरना मुझे कहना पड़ेगा अगर थोड़ा गुजारा करो, ये तो होगा। ये आपको कौन सा कनेक्टर नजर आ रहा है? फॉर द कोएक्सियल केबल, एंड दैट फॉर द कोएक्सियल केबल दिस कनेक्टिव, दिस इज द T connector. This is again a connector which is used for with a cable, with the coaxial cable. ठीक हो गया जी। आज हम आपको दिखाते हैं जो कि आपको नॉर्मली क्लासरूम में कोई नहीं दिखाता, क्योंकि ऑप्टिकल उनके पास होता ही नहीं है। तो हम आपको पहले दिखाते हैं, पहले हम आपको दिखाते हैं कि देखो ये कनेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला कनेक्टर वो क्या बता रहे हैं? स्ट्रेट टिप कनेक्टर। कौन सा कनेक्टर? स्ट्रेट टिप कनेक्टर। तो आप कहेंगे जी ये तो आपने तस्वीर दिखाई। हम कहते हैं नहीं जी, हम आपको तस्वीर नहीं दिखाएंगे,
हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल आपको नजर आ रही है। क्या मेरे स्टूडेंट को ऑप्टिकल फाइबर केबल नजर आ रही है? आ रही है। और अगर मैं इनके सामने इसको इसको ले जाऊं तो क्या इनको स्ट्रेट टिप एसटी कनेक्टर नजर आ रहा है? और अगर मैं इसके ऊपर से ये हटा दूं तो बिल्कुल सही नजर आएगा स्ट्रेट टिप कनेक्टर। इज क्लियर? तो आपने यहाँ पे स्ट्रेट टिप का आप अब जहां जैसे अभी यहाँ पे हमारा ये आके कनेक्ट हुआ ऑप्टिकल फाइबर हमारे इथरनेट स्विच के अंदर, तो वो या तो स्ट्रेट टिप यूज कर रहा है या एलसी यूज कर रहा है। लेकिन अगर ये मल्टी मोड फाइबर है, तो अगर ये मल्टी मोड फाइबर है तो इसकी टिप मोस्टली स्ट्रेट टिप होती है, एसटी होता है। तो यहां पे भी आप देख सक रहे हो, और ये भी आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, आ रहा है आशा? तो यहां पे देखो ये स्ट्रेट टिप कनेक्टर है। इज इट क्लियर? अगर मैं ये पूछूं फिजा से कि दो दो क्यों बता रहा है, एक क्यों नहीं बताता, लेकिन मैंने तो एक बताया, फिर मैं मुझे भी दो बताने चाहिए, तो पहले मैं दो बता देता हूं ताकि मुझ पे भी ये बात ना आए। ये देख लें जी। क्लियर? तो दो क्यों, एक ट्रांस के लिए एक रिसीव के लिए। एक के जरिए आप अपना सिग्नल भेजोगे, दूसरे से आपको जो भेजा जा रहा है दुनिया से वो आएगा। क्लियर होगी मेरी बात? तो दिस इज द रीजन। तो इसलिए दो बताए जा रहे हैं। क्लियर? तो इनकी कैप्स हम वापस लगा देते हैं। लेकिन ये मानोगे कि ये सारी चीजें कम से कम यूटी नहीं देती। अच्छा जनाब, अब हम दूसरा फाइबर दूसरा कनेक्टर देखते हैं, जो कि दोनों सिंगल मोड और मल्टी मोड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, एलसी कनेक्टर। कौन सा कनेक्टर? एलसी कनेक्टर। तो देखते हैं जी एलसी कनेक्टर को भी। तो जेंटलमैन एक दफा फिर यहां से भी एलसी कनेक्टर दिखाते हैं, ये एलसी कनेक्टर, सॉरी एलसी कनेक्टर। तो क्योंकि एक है तो इट इज रिटन एज अ सिंप्लेक्स कनेक्टर। एलसी मीन लूसेंट कनेक्टर। फिजा कहती है लूसेंट क्या है, कंपनी का नाम है। ठीक है? तो लूसेंट वालों की ये कनेक्टर भी आप फिजिकली देखें। इज इट विजिबल? एक सीपीयू होते हैं बोर्ड के लिए, स्ट्रेट सीपीयू होता है मल्टी मोड के लिए। नहीं, स्ट्रेट टिप जो है वो सिर्फ इस्तेमाल होता है मल्टी मोड फाइबर के साथ। सिंगल मोड के साथ एलसी इस्तेमाल होता है। इज इट विजिबल? आई होप वेरी क्लियरली विजिबल नाउ। ठीक। तो दिस इज योर एलसी कनेक्टर एंड दिस इज योर सिंगल मोड फाइबर। दिस इज योर मल्टी मोड फाइबर। दिस इज मल्टी मोड, दिस इज सिंगल मोड। ठीक हो गया? सो अगेन जेंटलमैन, क्या मेरी स्क्रीन आपके साथ, मेरी स्लाइड आपके साथ शेयर्ड है? शेयर्ड है। तो ये दीज आर द कनेक्टर्स वेयर वी हैव द स्ट्रेट टिप कनेक्टर्स, वेयर वी हैव द एलसी कनेक्टर्स। एक है तो सिंप्लेक्स है, दो है तो कंप्लीट है, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। वन फॉर द ट्रांसमिशन एंड अदर वन फॉर द रिसेप्शन। क्लियर हो गया? देन इज दी, जैसे मैंने आपको दिखाए कि इसकी, आप अगेन स्टैंडर्ड है ना, कलर्स के बारे में भी स्टैंडर्ड है। एक ऑरेंज कलर है और एक येलो कलर है, और मैंने भी दोनों कलर दिखाए। तो जो ऑरेंज कलर है इसका मतलब दिस इज एमएम केबल, यानी मल्टी मोड केबल। और अगर
येलो कलर है तो इट इज सिंगल मोड फाइबर। ठीक है। बाज केसेस में ये भी होता है, मजेदार बात, कि इसका आप एक एंड रखते हो एलसी और दूसरा एसटी। आप कहेंगे ये क्यों? भाई मेरे पास दो डिवाइसेस लगे हुए हैं, एक स्विच यहां लगा हुआ है, एक स्विच नीचे लगा हुआ है। वो स्विच में जो जो कनेक्टर मुझे अवेलेबल है वो स्ट्रेट टिप मांगता है, इधर जो लगा हुआ है वो एलसी मांगता है। तो एक एंड हमने इसका स्ट्रेट टिप कर दिया और एक हमने इसका एलसी कर दिया। तो दोनों एक ही तरह भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। हाँ, नहीं एक ही केबल के, एक ही मल्टी मोड केबल, मैंने कहा ये वाला हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं मल्टी मोड के साथ। लेकिन अगर आपके जरूरत ऐसी पड़ गई है कि उसका एक एंड तो जो है वो ये है, अब आप चाहें तो इवन इसको सिंगल मोड पे भी इस्तेमाल कर जाओ। वो तो कनेक्टर है ना, इस कनेक्टर के पीछे अगर आप यूटीपी लगा दो या एसटीपी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नॉर्मली जो जो नॉर्म है वो मैंने आपको बता दिया कि जो, और उसकी भी रीजन है। रीजन ये है कि जो एलसी है वो कॉम्पैक्ट है, साइज में छोटा है, और सिर्फ यू प्रेस करो और निकालो उससे लगता है। स्ट्रेट टिप को मोस्टली लगा के थोड़ा टर्न करना पड़ता है, तो ज्यादा जगह चाहिए, तो जरा बड़ा है। तो जब आप वाइड एरिया में जाते हो, मिसाल के पेशावर से अगर बाहर कनेक्ट कोई पीटीसीएल की कनेक्टिविटी है, तो एक दो केबल तो नहीं होंगी, हजारों केबलें होंगी। तो यू नीड टू बी हैव कॉम्पैक्ट साइज। क्लियर हो गया? ओके। तो कहता है येलो जैकेट फॉर द सिंगल मोड फाइबर केबल एंड ऑरेंज फॉर द मल्टी मोड केबल। हारून ने आज बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो आफाक ने पूछे, वो सारी चीजें हारून से आज मिस हो गई। वीडियो से देखेंगे। अच्छा, तो जनाब अब हम आते हैं कंपैरिजन की तरफ, कि फाइबर का और कॉपर का कंपैरिजन करो। लेकिन मेरी ज्यादा इस कंपैरिजन से कॉपर बाहर हुई, फाइबर इन हुआ। लेकिन उसका कंपैरिजन करना मेरे लिए मुश्किल होगा फाइबर का वायरलेस के साथ, लेकिन करेंगे। मुश्किल है तो क्या हुआ? ठीक। तो सबसे पहले यूटीपी केबल, यूटीपी केबल के हैव दी कैपेसिटी, मैं बैंडविड्थ नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा? कैपेसिटी, विच इज अप टू 10 गीगाबिट पर सेकेंड। यानी कि आपकी ये केबल जो भी मैंने कहीं पे इसके साथ में खेल रहा था, ये कैसा समझ आ रही है समीउल्लाह, दानियाल? ये केबल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, दैट कैन कैरी अप टू 10 गीगाबिट पर सेकेंड। जबकि ऑप्टिकल फाइबर कैन, अ सिंगल फाइबर कैन कैरी अप टू 100 गीग। तो कल मैंने आपको बताई थी कि केबल लाकर हम दिखाई थी, उसमें 18 फाइबर थे। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 100। और भी बताऊं, जो कि ये नहीं बता रहा, कि आप एक फाइबर पे मल्टीप्लेक्स करके मल्टीपल सिग्नल को इकट्ठा भी कर सकते हो, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डब्ल्यू डी एम। क्या होता है WDM? वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो बाय यूजिंग WDM you can combine around 100 or more than 100 wavelengths and send on a single fiber. तो अगर हर एक को हम इज्यूम कर दें कि चले हर हर एक 10 गीग का है, तो 10 गीग इंटू 100, 1000 गीग, एंड 1000 गीग इज 1 टेराबिट। एक फाइबर 1 टेराबिट, तो 18 फाइबर मीन्स
18 टेराबिट। और हारिस समझता है, हारिस हारिस समझता है कि टेरा का मतलब होता है 1000 बिलियन, 1000 अरब बिट्स पर सेकेंड। ह्यूज सिंगल केबल प्लेइंग विद WDM। और अब तो WDM से आगे बात बढ़ गई है DWDM। DWDM डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी मोर वेवलेंथ कंडेंस टुगेदर सेंट ऑन टू द सिंगल फाइबर। ठीक है, तो जेंटलमैन, अगर आप this is the optical fiber cable. Ladies and gentlemen, we have seen it yesterday as well, लेकिन आफाक और मशल नहीं थी, तो हमने कहा कि जी आप लोग भी देख लो। दिस इज दी ऑप्टिकल फाइबर केबल, यू कैन सी हियर ईच स्लॉट। इसमें आपको नजर हर स्लॉट में एक फाइबर है, हर स्लॉट में एक फाइबर पड़ा हुआ है। और गिन लो कि कितनी स्लॉट है, तो 18 है। इसका मतलब इसमें 18 फाइबर हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इससे आपको ऑप्टिकल फाइबर का एडवांटेज नजर आता है। इज इट क्लियर? समीउल्लाह, मुजाहिद, तलहा, आमना, आयशा, खतीजा। जी सर, ओके नाइस। तो पहली चीज आपको समझ आ गई। दूसरी चीज क्या, कि आपने अभी देखा कि डिस्टेंस, जब आप इस यूटीपी से जाते हो तो डिस्टेंस इज अबाउट 100 मीटर, मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल इज 100 मीटर, जबकि वो यहां कह रहा है कि 100 किलोमीटर। तो कहाँ 100 मीटर और कहाँ 100 किलोमीटर? फिर क्या कहता है, यहां पे एक कॉपर आपकी वायर EMI से और RFI से इफेक्ट होती है। दोनों EFI और RFI एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है। तो ये बाहर की इंटरफेरेंस आपके केबल को, कॉपर केबल को इफेक्ट करती है। लेकिन जब आप ऑप्टिकल फाइबर के जरिए लेकर जाते हो, तो ऑप्टिकल फाइबर तो प्लास्टिक है, फाइबर ग्लास है, सिलिका है, वो तो इंसुलेटर है। इंसुलेटर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या रेडियो फ्रिक्वेंसीज का क्या असर? लेकिन तो इसके अंदर लाइट होती है, फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स पे इफेक्ट होते हैं क्योंकि आयनाइजेशन वाला फिनोमेना भी होता है। जी जेंटलमैन, असल असल जी आप कुछ कह रहे हैं? वो प्लास्टिक से पास नहीं होते हैं। वो प्लास्टिक से, RFI EMI प्लास्टिक से पास ही नहीं होता, वो इंसुलेटर है। मिसाल के तौर पे आप ट्रांसफार्मर की एक एक वाइंडिंग ले लें, जिसको आप प्राइमरी वाइंडिंग कहते हो, और उसके आगे आप कह के जी मैं एक प्लास्टिक का वो रख देता हूं, तो क्या इसमें कोई EMF इंड्यूस होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो सिग्नल जा रहा है वो सेफ है। बिग एडवांटेज। अनदर एडवांटेज क्या है, कि अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो जहां जहां इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ तो इलेक्ट्रिक वाला इफेक्ट होगा। लेकिन ये तो हाईली इम्यून है, कंप्लीटली इम्यून है। फिर कहता है कि जी कनेक्टर्स, हाँ ये बात जरूर है कि इसके यूटीपी कैब के जो कनेक्टर्स हैं वो सस्ते हैं। अच्छे से अच्छा कनेक्टर 20 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन लाजमी तौर पे अभी जो आपने ST और LC कनेक्टर्स देखे, दे आर नॉट एज चीप। आप भाई 20 रुपए का नहीं मिल सकता। फिर यू नीड द स्किल्स फॉर व्हाट? फॉर इंस्टॉलिंग द ऑप्टिकल फाइबर केबल, स्पेशली फॉर कनेक्टिंग द ऑप्टिकल फाइबर केबल। आप ये नहीं कर सकते, इवन इसमें भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी टू सम एक्सटेंट क्या लोग कर सकते, कि आप एक केबल यहां से दूसरी इसके अंदर लगा के और उसको प्लायर के साथ कर दो। नॉट ए गुड अप्रोप्रिएट वे, लेकिन फिर भी चलो यस पॉसिबल।
लेकिन आप ऑप्टिकल फाइबर को ये नहीं कर सकते कि दो ऑप्टिकल फाइबर को यूं करीब लाओ और कहो जी बस या तो इसको मैं थोड़ी सी आग लगा देता हूं ताकि ये जुड़ जाए, नहीं। या को प्लायर के साथ इनको मोड़ दूं, नहीं। तो अगर हम आफाक से पूछें कि क्या इस्तेमाल होता है यहाँ पे, स्प्लाइसिंग मशीन, स्प्लाइसर। तो स्प्लाइसर को भी पर काम करते हुए यू हैव टू बी वेरी, यू मस्ट हैव ए गुड स्किल्स। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये दो कनेक्टर्स को, अगर आपने दो कनेक्टर को यूं लगा दिया तो कनेक्ट तो हो गए, आप कहेंगे जी माशाल्लाह हो गया, कनेक्ट हो गया है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो रे ऑफ लाइट्स हैं वो लॉस हो रही हैं, बड़ा कम पार्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए यू हैव टू अलाइन देम, ट्राई टू अलाइन देम वेरी स्ट्रेट टू वन अनदर लाइक दिस, and then you will splice them. So again this require skill. Okay. फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स, यहाँ पे आपको ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि फाइबर इतना बारीक है कि नीडल से भी बारीक है। जैसे अब आपने आपको कभी कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो नीडल है ना, लेकिन वो फिर भी मोटी है, लेकिन उससे बारीक है। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं इंसर्ट हो जाए तो शायद आपकी आर्टरीज और वेन्स के जरिए कहीं से कहाँ पहुंच सकती है। So that is the reason you have to take it very carefully. So that is the comparison between the copper and the fiber. अगर ये हो गया तो इसका मतलब फिर मैं वायरलेस पे जाने की सलाहियत रखता हूं। हमने वायरलेस में कहा कि जिसको हम कहते हैं अनगाइडेड, जिसको हम कहते हैं अनगाइडेड। क्लियर हो गया? In the unguided, although along with the air, we have the option of sea water and we have the option of even the space, free space. Lekin as far as the networking is concerned, our major emphasis is all on air. क्योंकि हमारा जो मेन emphasis है इस कोर्स का, that is Wi-Fi, which is using air as a medium. So let's move to the wireless medium now. तो कहता है कि जी वायरस में, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि अगर आपका 1 and 0 है, यानी डिजिटल डेटा है, एंड यू वांट टू सेंड इट थ्रू कॉपर, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर हमने कहा कि अगर you want to send it through an optical fiber, you need to convert it into a signal which is optical, which is light. और फिर हमने कहा कि if it is an air, which means unguided, so we need the signal to be an electromagnetic signal, electromagnetic signal. नहीं आई बात समझ में? सिंपल। तो कहता है कि इट कैरीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इन वायरलेस ट्रांसमिशन। फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन द वायरलेस मीडिया कैरीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एंड दैट हर एक में, चाहे वो देखे ना, यहां मैंने क्लियर किया कि योर 1 and 0 डिजिटल डेटा इज इनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इनटू एन ऑप्टिकल सिग्नल और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो इसलिए उसने लिखा रिप्रेजेंटिंग बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स यूजिंग रेडियो हाई फ्रीक्वेंसी। फिर कहता है दिस प्रोवाइड द ग्रेटर, दैट इज द बेस्ट पार्ट विच इज नॉट अवेलेबल इन एनी अदर मीडियम, मोबिलिटी ऑप्शन। अगर एक इससे मोबिलिटी ले ली जाए, वायरलेस 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकेगा। दैट इज द ओनली पॉइंट जो कि इसको उसने जिंदा रखा हुआ है, वरना फाइबर के साथ इसका क्या मुकाबला। तो वायरलेस कनेक्शन कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन नंबर बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑप्शन। मोस्टली आपके पास एक मोबाइल होती है, आप कहते हैं और भी ले लेता हूं। क्यों? इसमें मैंने वायरस डाली हुई है, दूसरे में मैंने आईफोन रखा हुआ है, सिर्फ आपके लिए फोटो लूंगा, क्योंकि वो पीटीए के अप्रूव नहीं है। क्लियर?
कई लोगों के पास मैंने देखा है, उन्होंने सिर्फ ये पीटीए वाला रखा होता है, या तो सिर्फ वो वाईफाई के साथ काम करता है, और या फिर तस्वीरें लेनी होती है सारी इस तरह। ओके, तो जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे अबाउट दी कि इसमें कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं ऑप्टिकल में। सबसे पहले कवरेज एरिया, चाहे इफ यू टॉक अबाउट दी दिस कवरेज एरिया में आल्सो बी कॉल्ड एज द फुटप्रिंट, footprint. Now the footprint of this access router, for example, this access router may be a few meters. Although कहा जाता है कि 100 मीटर, लेकिन मोस्टली इट इज नॉट मोर देन 10 to 20 meters. मिसाल तौर पे यहाँ पे 3 इस वक्त एक्सेस रूटर लगे हुए हैं, लेकिन इवन शायद स्टेयर थे नीचे आप उतरते ही हैं तो उनकी रेंज खत्म हो जाती है। तो सबसे पहली चीज जो कवरेज इसकी रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज दी कवरेज एरिया। So effective coverage can be significantly impacted by the physical characteristic of the deployment location. This coverage area is dependent upon the location. मे बी कि आपने एक एक्सेस रूटर जो है वो किसी लॉन में लगा दिया, तो वहां पे एंट्रेंस नहीं है, तो दूर तक आपका सिग्नल आपके लोगों को मिल सकता है। स्टूडेंट दूर तक बैठ के लॉन में बैठ के इंटरनेट एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहां लगा हुआ है तो मल्टीपल वॉल्स हैं which are restricting or reducing the coverage area or the footprint of this access router. तो एक चीज तो हो गई जो लिमिटेशन, वो ये आ गई कि जी कवरेज एरिया हैज एन इश्यू। हम ये नहीं, इवन अपने घरों पे मैंने कई घरों पे देखा है कि भाई अगर मिसाल के तौर पे फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है एक्सेस रूटर, तो कहते हैं जी बेसमेंट में भी चाहिए और फर्स्ट फ्लोर पे भी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड जो हमारा मिसाल के तौर पे ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है उसका सिग्नल अच्छी तरह से इवन फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं मिलता। तो कवरेज एरिया। फिर हमने कहा दूसरी चीज लाजमी तौर पे, एज यू सेड, एंड probably you understand as well, but there is a question first I should answer this. ओके, खदीजा ने सिर्फ लिखा कि यस सर। समझ आ रही है खदीजा? ओके, तो अगली बात हम कर रहे हैं अबाउट दी इंटरफेरेंस, क्योंकि दिस एयर is a shared medium. This is a shared medium. मैं ये नहीं कह सकता कि सिस्को लैब मेरी है तो सिर्फ यहाँ पे मेरा सिग्नल जाएगा, नहीं, यहाँ पे हारून का सिग्नल भी जाएगा, यहाँ पे फिजा का सिग्नल भी जाएगा। तो इन दिस केस इट इज ए शेयर मीडियम, और जब शेयर है तो एक का सिग्नल दूसरे के साथ इफेक्ट कर सकता है। इसकी दो एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल ये दूंगा कि आप अपना एक्सेस रूटर लगा लें और साथ ही फिजा को कहेंगे कि वो इसके साथ एक माइक्रोवेव ओवन रख दे, माइक्रोवेव ओवन रख दे। अब आपको पता है कि माइक्रोवेव ओवन भी फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है हीटिंग के लिए। उसमें हीटर नहीं है, उसमें रेडिएशन है। दैट रेडिएशन enters into your food and becomes make your liquid or solid hot. तो लाजमी तौर पे इट इज आल्सो जनरेटिंग 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड योर एक्सेस रूटर इज आल्सो ऑपरेटिंग एट 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो यू विल ऑब्जर्व कि जो ही माइक्रोवेव ओवन लगी और अगर उसी जगह पे आप खड़े होके वाईफाई कर रहे हो, it will affect. What this effect will be called as interference. That effect will be called as interference. Even अगर आपको कभी दिल चाहे कि जी भाई का वो ना काम करे, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिस चैनल पे भाई ने अपना एक्सेस रूटर किया हुआ है, आप भी अपना एक्सेस रूटर उसी चैनल पे फिक्स कर दो, तो ना आपका काम करेगा ना उसका करेगा। वाई? जिसे कहती है इंटरफेरेंस होगी। दोनों एक ही चैनल पे एक ही फ्रीक्वेंसी पे
एक दूसरे के सामने आ गए। और आपने सुना होगा एक और टर्म भी, एंड दैट इज जी कि जी हमने जैमर लगाए हुए हैं। तो व्हाट द जैमर डू, वही सिग्नल उसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करते हैं जो कि रियल टेक्नोलॉजी कर रही होती है। कई जगहों पे मिसाल के तौर पे कोर्ट है, वहां कहते हैं जी यहाँ पे मोबाइल काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज आप उनको पता है कि यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर रही हैं। आप भी वही फ्रीक्वेंसी जनरेट वहां पे करके, और आपकी फ्रीक्वेंसी वहां पे तकड़ी है, क्योंकि उसका सिग्नल तो शायद 1 किलोमीटर से आ रहा है या आधे किलोमीटर से आ रहा है, आपका तो सिग्नल उधर ही पैदा हो रहा है। तो these two will interfere with one another and will definitely do destructive interference and will finish. So the second problem is about in the wireless is about the interference. Clear हो गया? Third thing, तो ये कह रहा है wireless is susceptible to interference and can be disrupted by many common, जैसे मैंने common devices के आपको बताया, इवन हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहां पे बहुत सा जो मेडिकल इक्विपमेंट है दैट इज आल्सो वर्किंग एट 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो वहां पे आपका वाईफाई काम नहीं करेगा। क्लियर? देन इज दी, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि आपकी एयर शेयर्ड है, इसका मतलब है कि आफाक का सिग्नल भी इसी एयर में मौजूद है और आरएस का भी है। अगर आरएस ये कह दे कि जी मैं सीनियर हूं, मेरा हक बनता है कि मैं आफाक का सिग्नल भी चेक करूं, तो कर सकता है। इसका मतलब है कि फिर आफाक ये कह सकता है कि जी यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी का इशू है, आरएस सिग्नल पकड़ के फिर सबको बताता है। ठीक? तो वायरलेस कम्युनिकेशन कवरेज रिक्वायर्स नो एक्सेस टू द फिजिकल स्ट्रैंड ऑफ मीडियम। अब फिजिकली उसके साथ मिलने की जरूरत नहीं है। आफाक आके अपनी कुर्सी पे बैठ के काम कर रहा है, आरएस उससे दूर आराम से बैठा हुआ है, लेकिन वो उसका सारा सिग्नल देख रहा है। सिक्योरिटी इशू। सो anyone can gain access to the transmission. This is again an issue. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं इसको इस्तेमाल ही करना छोड़ दूं। कल तो छोड़ नहीं सकते, इतनी जरूरत बन गई है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि इशू है सिक्योरिटी का, तो इसका मतलब है कि फिजा को सोचना होगा कि मैं कोई ऐसे सिक्योरिटी के मेथड निकालूं जिसकी वजह से आफाक जो है वो, क्योंकि वो कहती है हारिस सीनियर है और वो जूनियर मोस्ट है, तो मैं भी तो कम से कम सीनियर के करीब करीब हूं। तो फिर फिजा क्या करेगी? सिक्योरिटी के मेथड को इंप्रूव करने की बात करेगी ताकि आफाक का सिग्नल सिक्योर हो जाए। इसका मतलब है कि वो इसको बेटर इंक्रिप्शन मेथड निकाल के लेकर आएगी। क्या करेगी? बेटर इंक्रिप्शन मेथड्स निकाल के लाएगी। फिर मैंने कहा कि पहले ही मैंने आपको बता दिए कि आपका वायरस मीडियम जो है दैट इज शेयर्ड। शेयर्ड मीडियम की वजह से आपका डब्ल्यू लैन जो है वो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है। अल्टो कि आपको फील नहीं होता, आप तो समझते होते हैं कि भाई जा भी रहा है और आ भी रहा है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स की ये भी डेफिनेशन तो है कि वो एक वक्त में दे रहा होता है और अगले वक्त में दे रहा है, उसी वक्त में दोनों काम नहीं हो रहे होते साइमल्टेनियसली। तो कहते हैं डब्ल्यू लैन ऑपरेट्स इन हाफ डुप्लेक्स which means only one device can send or receive at a time. Many users accessing the WLAN simultaneously result in reduced bandwidth for each user. ये बात इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बाजू का स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे जी मैं तो 802.11 जी इस्तेमाल कर रहा हूं, स्टैंडर्ड है, जिसकी कैपेसिटी डॉक्यूमेंटेड है कि 54 मेगाबिट पर सेकेंड है। कितनी है? 54 मेगाबिट पर सेकेंड। लेकिन रिजान कहता है जी मुझे तो 54 नहीं मिलता।
उसकी वजह यह है कि अलीजान के साथ साथ मसूद शाह भी तो इस्तेमाल कर रहा है, तो दो हो गए तो 27 पे आ गए। हारिस आके बैठ गया तो अब 3 पे डिवाइड हो गया। हमजा आके बैठ गया तो 4 पे डिवाइड हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं है जो केबल में आपको बैंडविड्थ मिलती है वो डेडिकेटेड होती है, लेकिन जो वायरलेस में आपको मिलती है वो शेयर्ड होती है। इसलिए नॉर्मली आप वायरलेस से ये गिला करते हैं कि जो जो इसने कहा है वो ये देता नहीं है। हम आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन रीजन ये है कि ये डेडिकेटेड नहीं है, शेयर्ड है। लंबा सा सवाल आ गया जी शेरियार की तरफ से। यस, आई हैड ए वायरलेस एक्सटेंडर इंस्टॉल्ड, it reduced my internet speed from 20 megabit per second to 10 megabit per second. I then connect it to the wired connection. तो जी शरियार ने भी यही कहा कि जी विद दी वायरलेस में ही हैज दिस इशू, लेकिन वायर में ये मसला नहीं। वहां पे अगर मिसाल के तौर पे अगर आपकी 100 मेगाबिट पर सेकंड पे फास्ट इंटरनेट से कनेक्टेड है, यू आर गेटिंग 100 मेगाबिट पर सेकंड। इट इज नॉट शेयर्ड बाय वकार, इट इज नॉट शेयर्ड विद अफाक। बाकी लोगों को पता होता है, बाकी वायरलेस में शायद नहीं, वायर्ड में किसी की नहीं कम हो रही। हर मिसाल तो ये स्विच आपको मुझे मैंने दिखाया, लेट कर इसमें 24 पोर्ट हैं। ईच पोर्ट अगर इसमें 100 मेगाबिट पर सेकंड की है तो एवरी वन अगर एक लगा है तो तब भी 100 मिलेगा, दो मिले हैं तो दोनों को 100 मिलेंगे, तीन है तो तीनों को 100 मिलेंगे। ये नहीं हो रहा कि आपने 3 लगा दिया तो अब सबको 33 मिलेगा। आप एक डिवाइस से मिसाल के तौर पे आप वकार से इस स्विच के साथ कनेक्ट होकर वकार से कनेक्टेड हो, ये दोनों जो हैं उसी स्विच से कनेक्ट होकर आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह मिसाल के तौर पे हारिस जो है वो हमजा के साथ उसी स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो 6 लोग हो गए। आपको भी 100 मेगाबिट पर सेकंड मिलेगा, इन दोनों को भी 100 मिलेगा, और इन दोनों को भी 100 मिलेगा। इवन उसके बाद हम एज्यूम करते हैं कि फिजा और मशल भी कनेक्ट हो गई उसी स्विच के साथ, इन्होंने भी अपने आप को कनेक्ट कर लिया, इनको भी 100 मिलेगा। करोड़ अगर उनमें से एक बंदा वायरलेस भी वायरलेस तो अलग हुए ना, वायरलेस तो हम नहीं है। हमने कहा कि अगर वायरलेस है तो फिर ये शेयर्ड है। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर वायरलेस है और आप 54 है तो एक है तो 54 है, दो है तो 27 हो गया, तीन है तो डिवाइड बाई 3 हो गया, चार हुआ तो डिवाइड बाई 4 हो गया। इस तरह जो जो यूजर बढ़ते जाते हैं कैपेसिटी आपकी आपकी स्पीड कम होती जाती है। सर अगर एक बंदा इंटरनेट के लैन के थ्रू कनेक्टेड है, एक वायरलेस की, तो दोनों के इंटरनेट स्पीड तो इंटरनेट वाला को उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इथरनेट की स्पीड बेहतर होगी, इसलिए सर्वर्स को हम वायरलेस की बजाय वायर से कनेक्ट करना पसंद करते हैं, ताकि उसको एक फिक्स जो हम चाहते हैं वो कम मिनिमम वो चीज हर वक्त मिलती रहे। ठीक है। तो जनाब, तो ये आपने ये 4 लिमिटेशन देखेंगे। वायरलेस में कवरेज एरिया का मसला है, इंटरफेरेंस का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, और क्योंकि शेयर्ड मीडियम है तो स्पीड जो है सबको इक्वल जो कहा जाता है वो नहीं होता, इट इज शेयर्ड। क्लियर। और हाफ डुप्लेक्स है तो उससे भी स्पीड कम हो जाती है, जब आप भेज रहे होते हैं तो आप रिसीव नहीं कर रहे होते हैं। फिर हम क्या पढ़ते हैं जी, फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कुछ मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वायरलेस मीडिया को। बेसिकली यहाँ पे ये नहीं कहना चाहिए टाइप ऑफ वायरलेस मीडिया, ये कहना चाहिए कि मुख्तलिफ वायरलेस मीडिया इज गिविंग यू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। जैसे वेरी वेल नोन योर वाईफाई, इवन इन वाईफाई यू हैव डिफरेंट फ्लेवर। 802.11 भी है, 802.11 बी भी है, 802.11 ए भी है, 802.11 जी भी है, 802.11 एन भी है, 802.11 ए सी भी है, 802.11 ए एक्स भी है, इसके अलावा भी है। आप कहेंगे इनमें यूजर के पर्सपेक्टिव से क्या फर्क है, तो मैं कहूंगा यूजर के पर्सपेक्टिव से फर्क यह है कि एज यू आर मूविंग डाउन यू आर गेटिंग मोर एंड मोर कैपेसिटी स्पीड।
क्या समीउल्लाह और दानियाल, ये जो इक्विपमेंट और ये चीजें आपको कल और आज के दिन दिखाई गई, क्या ये आपने, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट्स हैं, क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान भी ये चीजें देखी हुई हैं, यूज की हुई हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि जी एक सेम एयर बीइंग यूज्ड बाय वाईफाई, देन the same air is being used by Bluetooth, which is called personal area net, personal PAN. This is the LAN. The difference between the two is shorter in distance. Then a very good technology, लेकिन चलो इस पे बाद में आता हूं। दिस वन, ये भी 802.15 है, ये भी 802.15 है, लेकिन .4 है। That is used by Zigbee. What is difference between the Bluetooth and the Zigbee? The major difference is about the low data rate and low power consumption. That is the primary importance. Zigbee क्या होता है? जिस तरह ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी का नाम है, इसी तरह पैन के लिए या इवन बैन के लिए या सेंसर्स के लिए, सेंसर्स में तो आपस में कम्युनिकेट करना होता है। अब सेंसर में जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है कि वो क्या हो, लो पावर कंजम्पशन करे। आप कह रही है क्यों करे जी लो पावर? द रीजन इज कि सेंसर को जहां भी आपने लगाया है, आपकी ख्वाहिश कम से कम ये होगी महीने तक इसको इसको वो दोबारा रिचार्ज ना करना पड़े। मोबाइल का तो आपका ये होता है ना कि जी आप जो ही सारा दिन इस्तेमाल किया, घर पे गए और आपने लगा दिया, लेकिन दिस इज नॉट फॉर दी ट्रू फॉर द Zigbee। तो ये इंडिपेंडेंट, जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे दी है, विच इज दी IoT। तो अब मिसाल के तौर पे आपका कैमरा है, अब आप कैमरे को आपने लगा दिया और आप चाहते हैं कि ये कैमरा जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करता रहे, तो उसमें आपको दो चीजें चाहिए। एक तो ये चाहिए कि हर रोज आप कैमरे को उतार के और चार्ज नहीं कर सकते, और दूसरा वहां पे कोई इतना ज्यादा डेटा रेट भी नहीं है। मिसाल तो मेरे को टेक्स्ट वो आपको पास ऑन कर रहा है, जैसे मिसाल टेम्परेचर का सेंसर है, या लाइट इंटेंसिटी का है, ह्यूमिडिटी का है, तो वेरी स्मॉल वैल्यूज नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, और वो भी हर वक्त करने की जरूरत नहीं है, मे बी आफ्टर एन आवर, आफ्टर ए हाफ एन आवर, समथिंग लाइक दिस। तो इस केसेस में यू नीड लो पावर कंजम्पशन। तो योर ब्लूटूथ इज टेकिंग मोर पावर एज कंपेयर टू द Zigbee। तो आप ये कह लें कि दिस इज ए another Bluetooth like Bluetooth नहीं का Bluetooth like technology, but it is has the good point about it is that it consumes less power. However, it gives low data rate, but it doesn't affect us. क्यों doesn't affect us? क्योंकि हमें मिसाल के तौर पे हमारा टेम्परेचर सेंसर है, उसमें दिन में 24 टाइम, जैसे मिसाल के तौर पे आपका वेदर का डिपार्टमेंट है, उन्होंने हर घंटे के बाद टेम्परेचर मेजर करना है, तो अगर एक सेंसर वहां लगा हुआ है, वो हर एक घंटे के बाद उनके सर्वर पे भेज देता है कि जी 11 बजे टेम्परेचर जो था वो फॉर एग्जांपल ये था, 12 बजे ये, 1 बजे ये, 2 बजे ये। तो उनके पास वो उनको एक मैनुअली बंदा नहीं बिठाना पड़ेगा कि जी आप ये काम करो, लेकिन वो ये भी नहीं कर सकते कि हर रोज आए और उसको चार्ज करें। तो वो इस Zigbee टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते। देन इज दी फिजा, वन रह गया बीच में WiMAX, जिसके कहते हैं 802.16 बड़ी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी थी फॉर ब्रॉडबैंड वायरलेस, यानी हाई स्पीड वायरलेस के लिए। और इसमें दोनों तरह के फीचर थे कि ये WMAN भी बन सकता है और ये WWAN भी बन सकता है। ये किसी टाउन को, किसी शहर को फुटप्रिंट, पूरा फुटप्रिंट कवर कर सकता है,
और ये पूरे मुल्क, पूरे शहर, पूरी दुनिया को भी कवर करने की सलाहियत रखता है। लेकिन बाज़ औक़ात किसी की अच्छी चीज भी होती है उसके लिए बुरी बन जाती है। तो शायद इसका W WAN में अच्छा किरदार इसका इसके लिए बुरा साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त सेलुलर नेटवर्क्स में 3G मौजूद था, जो कि डब्ल्यू वैन की फैसिलिटी देता है, वायरलेस वैन की टेक देता है। तो स्पेशली जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑलरेडी इस पे बिलियंस खर्च कर चुके हुए हैं, तो उनके लिए शायद ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि वो अपने बिलियंस को छोड़ दें और एक नई टेक्नोलॉजी पे चले जाएं। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि 3G जो है वो 4G पे जाए, 4G 5G पे भी जाए, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी पे हम नए जाएं, वो ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाए। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया था कि इसका पीछे भी एक ट्रैक है 2G का, और इसका एक पीछे भी ट्रैक है 1G का। तो इनका अपना एक वो चल रहा है, तो उन्होंने उसी को आगे देखना पसंद किया और इनको सपोर्ट किया। वरना शायद ये चीज खत्म होकर और दुनिया इस पे शिफ्ट हो जाए। क्लियर हो गया? तो दैट इज WiMAX, point to multi point topology to provide broadband wireless access। इसी तरह एयर में ही 802.21 भी था, है, जो कहता है कि इनको मिला लो। यानी कि आप इधर हो तो मिसाल तो वाईफाई पे आपको अच्छी स्पीड मिल रही है, लेकिन आप जो ही सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तो इट्स गॉन। तो गॉन ना हो, आप हैंड ओवर कर जाएं वाई उसके ऊपर। अगर WiMAX है तो WiMAX पे, WiMAX नहीं है तो सेलुलर है, सेलुलर पे। वापस आप अपने घर में, अपनी लैब में, अपने ऑफिस में पहुंचे तो वहां वाईफाई है। वाईफाई इज चीप, वाईफाई इज फास्टर एज कंपेयर टू द मोबाइल डेटा। यू शुड बैक टू दी योर वाईफाई। तो वैसे आप एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में हैंड ओवर करते जाएं। अगेन पीछे क्या है, टेक्नोलॉजी अभी हमारा पढ़ना ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि वायरलेस मीडिया इज यूज इन ऑल ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजीज गिवन बाय IEEE। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद अब अगर हम बात करें WLANs की, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि हमारा मेन एम्फेसिस एज फार एज द CCNA इज कंसर्न वायरलेस मैन है, ब्लूटूथ नहीं है, WiMAX नहीं है। हमारा एम्फेसिस जो है वो CCNA पे, CCNA में WLAN पे। अब इसमें क्या चाहिए? हमने कहा कि हमें दो चीजें चाहिए। हमने कहा हमें दो चीजें चाहिए। आपने पूछा वो दो चीजें क्या है? प्रकार, हमने कहा कि जी हमें ये दो चीजें चाहिए। एक, हमें एक्सेस पॉइंट चाहिए, एक्सेस रूटर चाहिए। तो हमने कहा जी ये है एक्सेस रूटर, ये है एक्सेस रूटर। ये है एक्सेस रूटर। लेकिन ये तो हमारे दूसरे एंड पे लग जाएगा। हमारे एंड पे क्या होना चाहिए? हमने कहा कि जी हमारे एंड पे एक NIC कार्ड होना चाहिए। हमने कहा हमारे एंड पे एक NIC कार्ड होना चाहिए, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
तो हमने अपने अपने डिवाइस के अंदर, अपने सिस्टम बोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर ये लगा लिया, और इस एंटेना के जरिए, जो कि एक डायपोल एंटेना है, जो कि हम बात करेंगे कि जब भी वायरलेस होता है एंटेना इज मस्ट। जो ही मैंने कहा एंटेना इज मस्ट, तो फिजा ने कहा कि मेरे लैपटॉप में तो नहीं है। ऐसे है ना, फिजा ने क्या कहा कि मेरे लैपटॉप में नहीं है। तो मैंने कहा आपके लैपटॉप में है लेकिन एम्बेडेड है, ये आपके कैमरा के करीब करीब कहीं पे ये यही चीज एम्बेड की गई हुई है। इसी तरह आपने कहा कि मिसाल के तौर पे इफ आई शो यू दिस डोंगल, ये डोंगल, इसमें भी लाजमी तौर पे इट इज टॉकिंग टू योर एक्सेस पॉइंट, तो इसका मतलब इट हैज अ कंप्लीट एनआईसी along with the antenna, क्योंकि it is transmitting and receiving, and without antenna transmission and reception is not possible. An antenna can be omnidirectional or can be directional, लेकिन depending upon your need again, whether you are using a omnidirectional or you are using a directional. अगर आप बात करना चाहते हैं अबाउट दी डायरेक्शनल, तो डायरेक्शनल का मतलब है कि वो एक ही डायरेक्शन में सिग्नल भेजता है। टू सम एक्सटेंट यू मे कॉल इट दी बीम फॉर्मिंग, कि आप एक बीम बना देते हैं एक ही डायरेक्शन में। क्लियर? लेकिन मिसाल के तौर पे आपकी मोबाइल है, अब आपकी मोबाइल में भी एंटेना है, वो तो शक नहीं है। जिस तरह के मैंने आपको कहा कि मेरे वाईफाई में भी, मेरे इस कार्ड में भी, मेरे लैपटॉप में भी ये मौजूद है, क्या एंटेना। तो अगर फिजा से पूछूं कि मेरे लैपटॉप में कौन सा होना हो तो बेहतर होगा, ओमनी डायरेक्शनल, omnidirectional mean in all direction, it transmit and receive in all direction, this is called omnidirectional। और अगर किसी एक डायरेक्शन में हो तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल। तो मैंने फिजा से पूछा कि आप क्या चाहती हैं कि आपके लैपटॉप में ओमनी डायरेक्शनल हो या डायरेक्शनल हो। लेकिन यह बताता चलूं उससे पहले, और एक्सप्लेन भी करूंगा, कि जो डायरेक्शनल होता है उसका गेन ज्यादा होता है, उसका गेन ज्यादा होता है। अब हमने ये सवाल जो है वो फिजा के लिए छोड़ दिया कि फिजा बताओ आपको कौन सा चाहिए। तो फिजा ने कहा डायरेक्शनल। इसका मतलब कि फिजा मेरे ट्रैप में कंप्लीटली आ गई, इसका मतलब मैं वाकई उस्ताद हूं। कल शाम को मैं एक यंग लेडी से मिला, तो वो कह रही थी कि जी मैंने साइकोलॉजी में बीएस किया हुआ है। तो ज्यूम कर रही थी कि मतलब वो आ, चीजों को समझने में और इन चीजों को बड़ा मतलब बेहतर है। तो मैंने कहा आप थ्योरेटिकल हैं, हम प्रैक्टिकल हैं। हम किसी को कुछ निकालना होता है तो वो भी इससे निकाल लेते हैं। कहती है हमें 5-5 6-6 सेशंस करने पड़ते हैं लोगों से उनकी हिस्ट्री निकालने के लिए। तो हमने कहा हम एक तकरीबन चंद 100 लोगों को हर साल उनके साथ रहते हैं और उनकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं, और उनसे जो निकालना चाहते हैं वो निकाल भी लेते हैं। तो हम क्या, हम प्रैक्टिकल, हम साइकाट्रिस्ट हैं। तो एनी हाउ, तो मैंने क्यों इनसे ये चीज निकाली, इसको मैंने मुंह में वो दे दिया कि जी उसमें गेन ज्यादा है, तुम ये लो। लेकिन उसको इस तरफ उसने इग्नोर कर दिया कि अगर डायरेक्शनल होगा तो इसका मतलब ये है कि उसको पता होना चाहिए कि उसका दूसरा एंड किस तरफ है, जो कि फिजा को कभी भी नहीं पता हो सकता। यही थी ना, मुझे पता था कि मैंने क्या निकालना है, तो मैंने उसके लिए इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब कहने का मेरा मकसद ये था कि क्योंकि फिजा को कभी पता नहीं हो सकता कि मेरे मिसाल के तौर पे उसके पास यू कौन सा कनेक्शन है, यू फोन का, यो फोन का।
तो अगर यूफोन का कनेक्शन है, यूफोन का टावर किधर है वो तो हमें नहीं पता। तो अगर इसके पास डायरेक्शनल एंटेना होता तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन से रिसीव कर सकती, और हो सकता है उस तरफ टावर होता ही ना, और इसको कहना वो मिलेगा ही नहीं कुछ भी। इसी तरह जब ये स्लैब में आती है तो इसको तो कोई एक्सेस रूटर नजर ही नहीं आता। वो तो मुझे पता है कि मैंने कौन कौन सी छत के अंदर छुपाया हुआ है। तो हियर कम्स दी कि इस सिनेरियो में यूर ओमनी डायरेक्शनल इज बेटर। लेकिन क्लियर, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन का पता हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, अब अगेन ट्रेंड इज नॉट देयर, लेकिन आपने एक वक्त में देखा होगा कि जब सैटेलाइट रिसीवर्स का बहुत ज्यादा लोगों के घरों में भी लगने शुरू हो गए थे, तो वो ऊपर एक पैराबोलिक एंटेना लगाते थे, डिश जिसे आप लोग कहते थे। तो दैट वाज, आप उसको एक खास डायरेक्शन में अलाइन करते थे, क्योंकि आपको पता होता था कि मेरा सैटेलाइट किस तरफ है। जिसको आप कहते थे सैटेलाइट से, मैं उसको ट्रांसपॉन्डर कहता हूं। तो ट्रांसपॉन्डर को और अपने एंटेना को आप अलाइन करते थे। क्लियर? तो दिस इज दी, तो टू थिंग्स आपने कहा कि आपके वायरलेस लैन में चाहिए, एक एक्सेस रूटर, एक्सेस पॉइंट, और दूसरा आपको चाहिए एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्लियर? तो कहता है जी देयर आर नंबर ऑफ डब्ल्यू लैन स्टैंडर्ड्स। मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर नंबर ऑफ वायरलेस स्टैंडर्ड्स आपको दिखाए। नंबर ऑफ वायरलेस स्टैंडर्ड्स ये आपके सामने प्रेजेंट किए। क्लियर? व्हाई कंफ्यूज? ओके जी। When purchasing WLAN equipment, ensure compatibility and interoperability. क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे वो? तो यहाँ पे अलीजान को ये बताना चाहता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 802.11a है, मिसाल के तौर पे, तो ये स्टैंडर्ड आपका चलता है 5 गीगाहर्ट्ज पे। लेकिन अगर आपके पास दूसरा एक्सेस पॉइंट लेट करें 802.11b का है, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे सिर्फ चलता है, तो ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि इनके दरमियान में ना कॉम्पेटेबिलिटी है ना इंटरऑपरेबिलिटी है। क्लियर? तो इसलिए बेटर ये है कि आप ऐसा स्टैंडर्ड लें जो कि 5 गीगाहर्ट्ज में भी काम करे और 2.4 के भी करे, और रिसेंटली 6 गीगाहर्ट्ज भी आ चुका है तो इसमें भी करें, ताकि आपको इंटरऑपरेबिलिटी और कंपेटिबिलिटी का इशू ना हो। वो स्टैंडर्ड आप चूज करें। मिसाल के तौर पे 802.11g है, 802.11g है, वो 2.4 पे भी करता है और 5 पे भी करता है। दैट इज गुड ऑप्शन। तो कहते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट अप्लाई, डेवलप एंड अप्लाई stringent security policies and processes to protect WLAN from unauthorized access. मिसाल के तौर पे वन ऑफ द मेथड कैन बी कि कोई अनऑथोराइज ना इस पे आ सके। आपका वाईफाई, आपका एक्सेस रूटर अपने आप को एडवर्टाइज ही ना करे। मिसाल के तौर पे जो ही आप इस लैब में आते हो और इस लैब में आते ही कहते हो कि जनाब मिसाल के तौर पे सिस्को अकेडमी है, सिस्को एडमिन भी है, और मैं इनसे कनेक्ट हो, इसका मतलब हो सकता हूं। तो जब आपको इसको कहते हैं SSID, क्या कहते हैं SSID, तो जब आपको SSID मिल जाता है तो फिर आप इसके पासवर्ड की तरफ, जिसको हम पास फ्रेज कहते हैं, क्या कहते हैं, पास फ्रेज को सर्च करने की कोशिश करते हो, अपने दोस्त से पूछते हो। इवन अगर आपका वो नेबर है उसे कहते हो जी आपके घर में ये लगा हुआ है, इसका पास फ्रेज तो दो ना। उसको तो पास फ्रेज नहीं पता, उसको तो पासवर्ड कहते हो, पासवर्ड बताओ ना। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि ये नजर ही ना आए,
वह इसको अपने बीकन्स के जरिए एडवर्टाइज करता है। स्टॉप कर दें रूम में। ओके दानियाल, प्लीज शेयर नाउ। मालिक, या इट्स शेयर नाउ। तो मैंने आपको कहा कि जनाब आप, क्या मैं आपको बताना चाह रहा था कि व्हाट वी आर यूजिंग हियर, हमें ऐसे स्टैंडर्ड यूज करने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 802.11a जो है वो सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। अब इसकी रेंज कम है, ये भी ख्याल रखोगे। स्पीड अच्छी है। स्पीड मिसाल के तौर पे इट इज प्रोवाइडिंग यू 54 मेगाबिट पर सेकेंड, एज कंपेयर टू दिस इट इज प्रोवाइडिंग यू 11 मेगाबिट पर सेकेंड। तो फिर क्यों ये है? क्योंकि हिंड्रेस से जब ये गुजरता है वीक हो जाता है। लेकिन यहां पे मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये है कि जब आप खरीद रही हो इक्विपमेंट, तो अपने इंटरऑपरेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी के इश्यूज को देख के खरीदो। वो स्टैंडर्ड वाली चीजें खरीदो जो कि, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो जैसे आप मिसाल के जी है, तो जी का मुझे पता है कि जी अगर ये 5 गीगाहर्ट्ज हुआ तो 5 पे मिल जाएगा, नहीं होगा तो 2.4 वाला इक्विपमेंट है उसके साथ भी मैं लग जाऊंगा। इसे हम कहते हैं बैकवर्ड कंपैटिबल है। तो अब ये देखना होगा कि कौन से स्टैंडर्ड जो है वो जी पे भी, सॉरी 6G पे भी कंपैटिबिलिटी शो करते हैं। वी विल प्रमोट देम। तो मैं अभी ये कह रहा था कि अगर आप अनऑथोराइज्ड एक्सेस बचाना चाहते हो, तो एक तरीका ये है कि आप, जो आपके ये SSID है, जैसे इस वक्त मेरी SSID क्या है, ये है इडियोरॉम, सिस्को इसी काउंसिल, सिस्को अकैड, सिस्को एडमिन। दीज आर माई SSIDs। क्लियर हो गया? तो इस SSID, ये क्योंकि हमारी तो यहाँ मजबूरी है कि ये तुम्हारा बिजनेस है, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे, इसलिए तो चंद दिन पहले पता चला कि माइनिंग के लोग भी यहाँ आके बैठे होते हैं, शायद मैंने आपको भी बताया था। तो वही माइनिंग वालों को यहाँ पे क्या आने की क्या ख्वाहिश है ऐसी, कहते हैं यहाँ पे एक तो कूलिंग बेहतर है, दूसरा इंटरनेट बेहतर है, दे इंजॉय। इवन केमिकल के मैंने देखे, सिविल के देखे, सिविल वाले तो कितने दूर से गरीब हुआ यहाँ आते हैं, मैकेनिकल के भी आते हैं। और आप हमें नहीं बताते कि हम उनको कम से कम यहाँ से फारग करा करें कि आप लोगों को जगह मिलेगी। तो वाई? बिकॉज हमने ये बताए हुए हैं। अगर हम ये छुपा दें, ये बीकन्स में ना दे SSID, तो ये हाइड हो जाएंगे। तो दैट इज वन ऑफ द वे, इफ पॉसिबल। हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एक वक्त में मुझे कहा गया था कि सिस्को एडमिन को ये कर दो, सिर्फ फैकल्टी को इस्तेमाल कर सकेगी। तो मैंने कहा फैकल्टी कितनी है? 2-4 तो लोग हैं सारे जो इस आसपास बैठे हुए हैं, उनके लिए एक राउटर को करना डजंट लुक नाइस। छोड़े, स्टूडेंट भी यूज करें। ठीक है जी। तो इस चीज से आपने इसको बचाना है कि आने इस तरह, इसमें जो सिक्योरिटी के मेथड्स हम पढ़ेंगे अगले कोर्स में, विच इज अबाउट दी स्विचिंग, राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स। तो उस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि जब हम इंक्रिप्शन मेथड्स लगाएंगे, तो डब्ल्यू क्या हम WEP पे जाएंगे? दैट इज ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म। लेकिन मुझे हारून कहता है हरगिज मैं ये इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये हाईली अनसिक्योर है। फिर मैंने कहा क्या करूं? कहते जी WPA पे चले जाओ। मैंने कहा ये भी तो कमजोर है। कहते WPA 2 पे चले जाओ। मैंने कहा चले जाऊं इसमें? कहते हैं सर नहीं WPA 3 भी आ गया है, इसको इसको यूज करो। तो बाय यूजिंग दीज स्टैंडर्ड्स यू कैन प्रोटेक्ट योर यूजर्स। जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि फिजा ये इंश्योर करेगी कि आफाक का सिग्नल, आफाक के मैसेजेस को हारिस ना पकड़ सके। तो वो हमें क्या, इस चीज के लिए क्या चीज हमें एडवाइस करेगी? एज ए इंजीनियर हमें कहेगी कि
आप इंश्योर करें कि तमाम के तमाम राउटर जो है WPA3 पे हैं, ताकि वायरलेस प्रोटेक्शन समथिंग, अभी बता देता हूं। WEP से तो बनता है वायर्ड इक्विवेलेंस प्रोटोकॉल, यानी जब बनाने वाले ने ये कहा था कि ये इतना सिक्योर है कि जैसे तार में आप अपना सिग्नल भेज दें तो आप ये गम नहीं करते कि जी इसे कोई पकड़ नहीं सकता, इस तरह आप हवा में छोड़ दो सिग्नल और ये सोचो कि मेरा सिग्नल आप कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये चंद मिनट का मेहमान है, चंद मिनट में टूट जाता है। लेकिन आपने पूछा कि WPA का एब्रीविएशन, तो WPA स्टैंड्स फॉर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस। इसमें WPA भी है, WPA2 भी है, WPA3 भी अब आ गया है। तो WPA3 इज द मोर सिक्योर, और मिनिमम WPA2 से नीचे नहीं रहना। तो ये बात हमें किसने बताई? इंजीनियर साहबा किसने बताई? कहती है फिजा ने बताई। क्लियर हो गया? लेकिन इंजीनियर साहबा ये नहीं बताती कि अभी ये थी कहां पे। अच्छा जनाब, उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें हम थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 4। क्लियर हो गया? क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 5 के बारे में सिर्फ बात करूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। तो आप कहेंगे क्यों नहीं पढ़ा रहे? वजह यह है कि इसमें इतने मुश्किल टॉपिक्स हैं, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। कोई जिसको बाइनरी सिस्टम नहीं आता? आता है ना। और दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर्स। इसलिए ये चैप्टर पढ़ाने की बजाय, जब इसकी क्योंकि उन्होंने पढ़ाया क्यों या इंक्लूड क्यों किया, जब हम आईपी नेटवर्क्स में जाते हैं, IPv4 IPv6 में, तो IPv4 में हम बाइनरी और डेसिमल के साथ खेलते हैं, बाइनरी और डेसिमल के साथ खेलते हैं। और जब हम हेक्साडेसिमल में जाते हैं तो हम बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में खेलते हैं। तो हम उस वक्त सिखा देते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। अगर नहीं होती, अल्दो के 6 सेमेस्टर में एक स्टूडेंट है, उसे कहते हैं इसमें बड़ी अच्छी गेम है, तो मैं वो एड्रेस उससे पूछ के आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस गेम को खेलते हुए यू विल लर्न ए लॉट एज वेल। ठीक है? तो जेंटलमैन, इसको हम कर देते हैं नो, और हम अगले चैप्टर पे, लेकिन पहले हम सोचेंगे कि अगला चैप्टर हम पढ़ें क्या। हम अगला चैप्टर क्या पढ़ें? तो हमने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमने चैप्टर नंबर 3 में हमने अपना TCP/IP सूट अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। फिर हमने क्या किया? हमने इस TCP/IP सूट को जब खोला तो पता चला कि इसमें सबसे पहले फिजिकल लेयर आती है, जिसको हम लेयर 1 कहते हैं। यहाँ लाइट चली गई है, मैं चेक करता हूँ कि क्या ओवरऑल गई है या सिर्फ। एक मिनट दीजिएगा। आपके डिटेल्स हमें लगा है, लेकिन बाद में हमें बताया गया कि जी आप हमने लगा दिए हैं वो सोलर। सोलर के साथ वो भी इन्वर्टर, इन्वर्टर जाके इन्वर्टर में लगाना जरूरी है। हमने वो हटा दिया। अब उनका सोलर बैठ गया, तो आप वापस रिप्लेस करेंगे।